afternoon session, we are honored to invite Dr. Kapil Naran, scientist E at the Solid State Physics Laboratory, to enlighten us with the presentation on the epitaxial growth of advanced semiconductor materials. Dr. Naran is a distinguished scientist at SSPL, a premier research laboratory in the country. He completed his PhD from Department of Physics at Indian Institute of Technology, Delhi. Prior to joining SSPL, he served as a process engineer at Sterlite Technologies Limited, a leading optical fiber cable manufacturing industry. Dr. Naran holds a Masters of Technology in Optoelectronics and Optical Communication from IIT Delhi, as well as Master of Science in Physics from the Department of Physics and Astrophysics at the University of Delhi. His academic journey began with a bachelor's degree in physics honors from Hindu College, University of Delhi. With a rich academic background, Dr. Naran has contributed significantly to the field with over 20 publications in renowned national and international journals, conferences, including the Journal of Applied Physics, Journal of Material Science, Journal of Alloys and Compounds, and Material Research Bulletin, among others. His extensive expertise lies in the epitaxial growth of group 3 and 5 semiconductor, primarily utilizing the metal organic chemical vapor deposition technique. Currently, his research focuses on the growth and characterization of group 3 nitride-based heterostructures. We welcome you, sir. Now, I would like to request Dr. Anamika Jain ma'am to present a sapling to Dr. Kapil Naran, sir. This is the outline about change नहीं ऐसा क्यों I think anyways, coming to the outline. So outline में we'll discuss about the three nitrides. इसमें नाम सुना है three nitride, वैसे वैसे टॉप हो ही है तो पता चल गया। और उससे पहले three nitride, the about the applications, then after about the nitride based HEMT, कई लोग इसे HEMT भी बोलते हैं, electron mobility transistor, epitaxial growth, then growth कैसे होती है by MOCVD, कौन कौन से substrate यूज करने चाहिए growth and characterization, and different type like thin band base, advanced heterostructure like indium aluminum nitride, सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा we'll discuss. डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में ज़्यादा जाएंगे तो फिर 2 घंटे में कम पड़ जाएंगे, ठीक है? So we'll cover slightly each and every topic. This is about the three nitride. ये सबको पता होगा. What is this? Top of periodic table.
ग्रुप 13 हम 3 से डोनेट करते हैं, तो 3 4 5, तो इसमें ये है गैलियम, ये है नाइट्रोजन, तो दिस इज गैलियम नाइट्राइड। नाउ जब हम गैलियम नाइट्राइड की बात करते हैं, इसमें इट्स अ वाइड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। आई होप एवरीवन नोस व्हाट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सबको पता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर? एक सेमीकंडक्टर और कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताना चाहेगा? जनरली हम बैंड गैप के बेसिस में डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर्स में बैंड गैप ओवरलैप करते हैं, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है एंड इंसुलेटर में थोड़ा ज्यादा होता है। ये बेसिक डेफिनेशन थी। और जनरली पहले हम बोलते थे कि अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो ऊपर है वो इंसुलेटर है। दैट वाज द डेफिनेशन। मैंने भी यही पढ़ा अपने शुरू के टाइम में कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो ऊपर जाएंगे वो इंसुलेटर होगा। बट राइट नाउ जैसे गैलियम नाइट्राइड आया, इसका बैंड गैप है 3.4 और इसको बोलने लगे वाइड बैंड गैप डायरेक्ट, वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, मतलब अब ये भी सेमीकंडक्टर है। फिर एक और मेटेरियल एल्यूमीनियम नाइट्राइड 6.2, इतना ज्यादा है, वो भी सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आज की तारीख में बैंड गैप के बेसिस पे रही नहीं, उसको डिफाइन किया गया बेसिकली जिसमें डोपिंग की जा सके, जो एन टाइप पी टाइप बन सके बाय डोपिंग। तो दिस इज हाउ द डेफिनेशन चेंज विद टाइम। और जब हम इन सब मटेरियल्स की बात करते हैं, एल्यूमीनियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम नाइट्राइड, ऑल थ्री आर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर with a wide range from 6.2 to 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बड़ा ये रेंज कवर करते हैं कि इसमें IR भी आता है, अल्ट्रावायलेट भी आता है और विजिबल भी आता है। विजिबल का पूरा स्पेक्ट्रम आता है। जब तक नाइट्राइड नहीं था तो विजिबल का स्पेक्ट्रम में ब्लू में दिक्कत थी। गैलियम नाइट्राइड के आने से ब्लू एलईडी हमें मिला। जब तक गैलियम नाइट्राइड नहीं था तो ब्लू एलईडी डायरेक्टली नहीं था, क्योंकि आपको अगर व्हाइट एलईडी बनानी है तो आपको तीनों कलर चाहिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो ब्लू गैलियम नाइट्राइड के कारण आया एंड जिसके कारण जिन 3 लोगों ने, क्योंकि जब हम गैलियम नाइट्राइड की बात करते हैं, इन लोगों की बात ना की जाए तो बिल्कुल कम है, 3 लोगों के कारण ब्लू एलईडी आ पाया। एंड फॉर दैट इन द ईयर 2014 नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स टू दीस 3 पर्संस। अब 2014 याद कैसे रहेगा? मोदी जी आए थे, है ना, गवर्नमेंट बनी थी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर एज फॉर हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी रहा, बट एनीवेज फिर नाइट्राइड कम्युनिटी के लिए भी बहुत दैट ईयर नोबेल प्राइज फिजिक्स मिला। नो ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता रहूं, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। सर वन क्वेश्चन सर, हां बोलिए। in any material like gallium arsenide or gallium nitride, is there direct band gap as well as indirect band gap also available? Yes. Or only direct band gap available? लाइक अगर मैं बात करूं गैलियम आर्सेनाइड की, गैलियम आर्सेनाइड तो डायरेक्ट है, बट एल्यूमिनियम आर्सेनाइड इनडायरेक्ट है। No, in particular, the both bands are available, or in a particular material only one band, one direct or single direct band gap will be available. Suppose you are talking gallium arsenide, direct band gap. Is there indirect band gap also available in the gallium arsenide? देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन कैसे होती है, जहाँ आपका मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड आते हैं फॉर द सेम के वैल्यू, वो उधर से डिफाइन होता है। अब इन सब पे एक बैंड स्ट्रक्चर्स होता है, तो बैंड स्ट्रक्चर में कहाँ मिनिमम मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड आ रहा है और कहाँ like this ये है, अगर ऐसे आ रहा है both are line minimum of conduction band and maximum of valence band are at the same k value, then it is called direct. Right, sir. And if you have something like this, minimum of conduction band and maximum valence band at a different k value, Right, sir. तो दिस इज इनडायरेक्ट। मटेरियल में या तो ये होगा या ये होगा, बट यस आप मटेरियल में बाय ट्यूनिंग डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है, दैट द वेज, ठीक है। बट उसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे या तो वो डायरेक्ट की तरह बिहेव करेगा या वो इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की बात करूं, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड इनडायरेक्ट,
गैलियम आर्सेनाइड डायरेक्ट है, बट मैं दोनों को मिलेगा एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। तो कुछ कंपोजिशन तक वो डायरेक्ट रहेगा, कुछ कंपोजिशन के बाद वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बाय चेंजिंग द मटेरियल हम बैंड स्ट्रक्चर को वेरी कर, दिस इज कॉल्ड टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको बोला जाता है बैंड गैप इंजीनियरिंग। हम मटेरियल के साथ प्ले करते हैं कि हमें डायरेक्ट चाहिए, हमें इनडायरेक्ट चाहिए, एज पर द एप्लीकेशन। आई होप क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? No, here that means here can be given the shape of direct band gap as what we need as per that. बाय बैंड गैप इंजीनियरिंग By दो by मटेरियल्स mixing को the मिला different- दो मटेरियल्स को मिला दिया। by mixing the different fraction of material. बिल्कुल यस ना। अब हम बात करते हैं गैलियम नाइट्राइड की। अब का स्ट्रक्चर जैसे भी मैंने बताया, इसका एक स्ट्रक्चर है। सो इन द थर्मोडायनामिक की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इसके बहुत सारे हैं बट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज वर्जाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें ईच नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 4 गैलियम एंड ईच गैलियम अटैच्ड विद 4 नाइट्रोजन। ये आप लोगों ने कहीं स्ट्रक्चर देखा है? टेट्राहेड्रल, एंगल इज 109.5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है टेट्राहेड्रल की? sp3, very nice, sp3 hybridization, very nice. So this is gallium nitride and तो इसमें कोई सेम स्ट्रक्चर, इसका वर्जाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इट इज बेसिकली HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसमें। मतलब नीचे उसके एटम है 7 एटम्स है नाइट्रोजन के हेक्सागन फॉर्म में। फिर आप इस येलो कलर को भूल जाइए, ऊपर भी 7 एटम है गैलियम के और उन दोनों के सेंटर में 3 एटम है नाइट्रोजन के। ये एक HCP, दूसरा HCP बनता है गैलियम के कारण। वही गैलियम के ये 7 एटम, इससे थोड़ा सा नीचे अबाउट 3, ये पूरा लेंथ C बोला जाता है, इसका आधा हुआ C/2, तो उसका 3/8 ऑफ C, मतलब थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा नीचे गैलियम के एटम। तो दिस एंड फिर उधर नाइट्रोजन उसके, तो मतलब इट इज इंटरपेनिट्रेटिंग HCP। एक HCP के अंदर दूसरा HCP है। दिस इज हाउ दिस अरेंजमेंट। खाली HCP बोलेंगे तो उसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पर जब दो HCP आ जाते हैं एक के अंदर एक इंटरपेनिट्रेटिंग, उसको बोलते हैं वर्जाइट क्रिस्टल। तो गैलियम नाइट्राइड का ये वर्जाइट क्रिस्टल होता है। जैसे हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड में क्या होता है? FCC, 2 FCC इंटरपेनिट्रेटेड होते हैं। डायमंड किसका होता है? कार्बन का, इलेक्ट्रॉन का, सबको पता है ग्रेफाइट भी है। तो डायमंड में क्या है? डायमंड का एटम्स कैसे अरेंज है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आई होप वो सिंपल क्यूबिक आपको याद होगा, आइटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, उसे बोलते हैं सिंपल। फेस सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर्स में है और हर फेस के सेंटर में है। और एक होता है बॉडी सेंटर, BCC. कॉर्नर्स में है और एक बीच में है क्यूब के। तो ऐसे डायमंड में क्या होता है? वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, पर जब 2 इंटरपेनिट्रेटिंग FCC आ जाते हैं तो उससे बनता है डायमंड। डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो गैलियम नाइट्राइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें 2 HCP आते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया वर्जाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रिमेंबर रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ पीछे मैंने दिखाया था जिसमें गैलियम नाइट्राइड पूरा वेरिएबल को कवर करा, तो उसमें ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है। तो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला लाइट, जितनी भी एलईडीज है, मोबाइल में भी व्हाइट टॉर्च लाइट आप यूज करते हैं, सब में बट वी यूज गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड के मटेरियल्स है। एंड देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल थिंग इज दैट आज ब्लू रे टेक्नोलॉजी, बट बिफोर दैट वाटर प्यूरिफिकेशन हम घर में यूज करते हैं, आरओ, यूवी, उसके अंदर एक होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट। अब
पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो यहाँ सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि यहाँ यूवी नहीं थी, पर जब उनमें यूवी लाइट डाली जाती है वो मर जाते हैं। तो फॉर दैट यूवी आल्सो व्हाट वी यूज गैलियम नाइट्रेट, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि ये फार आईआर से फार यूवी तक along with visible power. So in a water purification we use gallium nitrate, मतलब gallium nitrate based devices. In a blue ray technology, if you remember, कितना साइज होता है? MB, 1 MB. फिर CD तो अभी भी चल रही है। Anyway, CD की बात करते हैं। CD का कितना साइज होता है? नहीं, CD में तो MB नहीं होता है। 700 MB। फिर आया DVD जो भी यूज कर रहे हैं। DVD में कितना साइज होता है? 4 GB, करेक्ट। DVD में 4 GB। CD और DVD को अगर आप देखो ना ध्यान से, दोनों दिखते हैं जैसे। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर स्टोरेज 700 MB से 4 GB हो गया। पर क्या हुआ? जो उसमें लेजर यूज किया जाता है, एक्चुअली क्या होता है, हर एक लेजर का एक स्पोर्ट्स साइज होता है। लेजर का एक स्पोर्ट्स साइज होता है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है लेजर की, उसका स्पोर्ट साइज कम हो जाता है। तो जब आप सीडी से डीवीडी गए, वेवलेंथ कम हो, स्पोर्ट साइज कम हो गया, सो नंबर ऑफ एंट्री उसमें बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड है, इसमें मैं अगर बिस्किट पैकेट की बात करूं, बड़े बड़े बिस्किट रखे तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या आएगी? कम आएंगे। और अगर मैं छोटे बिस्किट के पैकेट रखूंगा तो नंबर ऑफ बिस्किट्स पैकेट्स ज्यादा आएंगे। तो जैसे हम सीडी से डीवीडी में गए, वेवलेंथ कम हुई, डेटा स्टोरेज बढ़ गई, बट 4 GB पर रुक गए क्योंकि हमारे पास ब्लू कलर में, ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है। रेड का होता है वो 700 नैनोमीटर, ब्लू का होता है 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ जो जितना कम होगा तो डेटा स्टोरेज और बढ़ेगा। नाउ इट्स ब्लू कलर आ गया गैलियम नाइट्राइड के कारण। जब ब्लू कलर आ गया तो ब्लू रे टेक्नोलॉजी आ गई, एंड ब्लू रे टेक्नोलॉजी में सेम जो आपकी सीडी और डीवीडी वाला जो फिजिकल साइज है उसमें 25 GB तक डेटा स्टोरेज कई जगह यूज हो रहा है, कई जगह होगा आने वाले टाइम। द सेम थिंग, सेम सीडी डीवीडी वाला साइज जिसमें 700 MB से आप 4 GB पे गए थे, अब आप 25 GB पे जाएंगे यूजिंग ब्लू लेयर। उसमें कौन सा यूज होगा? ब्लू लेयर, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ और कम होगा। लोअर द वेवलेंथ, लोअर द स्पोर्ट साइज ऑफ ए लेजर बीम, क्योंकि लेजर बीम जब डालते हैं उसका एक स्पोर्ट साइज होता है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो जाएगा, स्पोर्ट साइज रिड्यूस हो जाएगा, डेटा स्टोरेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस GaN का इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, गैलियम नाइट्राइड सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, एंड हर किसी की अपनी कुछ खासियत है। सो रिगार्डिंग हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, एक कर्व है बिटवीन पावर एंड फ्रीक्वेंसी। हमें डिवाइसेस चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करे और हाई पावर क्यों? ताकि दूर तक सिग्नल जाए। जैसे मोबाइल टावर्स होते हैं, टावर जितने दूर होंगे उतना खर्चा कम पड़ेगा कंपनी को, ज्यादा दूर तक सिग्नल जाना है। तो हाई पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए ताकि सिग्नल की डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़े जल्दी से जल्दी। अब जैसे 2G था, 3G था, 4G था, 5G की बात हो रही है, क्यों? फटाफट सब कुछ हुआ है। तो वी नीड हाई पावर एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी। पर जब हम हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अबव 3 GHz कुछ ही कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, वाइल हियर इधर बहुत सारी, बट इन दिस रीजन खाली गैन का हैम्पटी स्टैंड करता है। Regarding this chart, this is a normal regarding gallium nitride, क्योंकि वाइड बैंड गैप है, तो जो चीज वाइड बैंड गैप है वो ज्यादा टेम्परेचर तक आप उसे यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज थोड़ा हायर टेम्परेचर, क्योंकि क्या होगा किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे एक स्टेज आने पे वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, मोर नंबर ऑफ कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे, तो लार्ज हो जाएगी थर्मली जनरेटेड। सो गैलियम का वाइडर बैंड गैप है, सो इट एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड उसको ज्यादा टेम्परेचर तक यूज कर सकते हैं। ब्रेकडाउन फील्ड ज्यादा है, उसमें ज्यादा करंट मिल सकता है, उसमें ज्यादा गेन मिल सकता है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक यूज हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट GaN हैज अ लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। ये एक नॉर्मल कर्व है, हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा चाहिए और R मतलब ऑन रेजिस्टेंस, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए उसमें ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट। तो दैट सिनेरियो GaN
सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन दोनों से आगे एच पे। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है मुझे भी लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जस्ट 2 more स्लाइड, फिर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये सेम चीज है, कंपैरिजन ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। गैल का अगर डिफरेंट फिगर ऑफ मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट फिगर ऑफ मैग्नेट, पावर स्विचिंग, हाई फ्रीक्वेंसी पावर स्विचिंग के कल आपने जो टॉक सुने हैं उमाकांत जी के, आशीष जी के, which deals with the simulations on design of that stuff, तो उसमें इन सब फिगर ऑफ मैग्नेट को कंसीडर किया जाता है। तो अगर इसमें भी देखें आप तो गैल बाकी मटेरियल से आगे बहुत ऐसे है। And because of that, gallium nitride based devices used in wireless base station, radar, satellite communication. And that's why it is considered only next to silicon in importance in semiconductor technology. So in radar, the oscillator is used. What is the frequency? In aircraft. इसमें जो यूज किया जाता है, हम अलग अलग बैंड्स के लिए बनाते हैं, लाइक स्टार्ट फ्रॉम एल एस सी एस, अलग अलग बैंड्स के लिए बनाया जाता है। थोड़ा फोटो में जो radar से अपने डाला। एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, बट ये है कि हायर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, लाइक आपको एक्स बैंड के लिए चाहिए। देखो बेसिकली क्या होता है, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे क्यों जाते हैं? जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, आपका एक तो एंटीना साइज कम होता है, आपको पता ही होगा। दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी पे जाने पे उसका जो हमें क्या होता है, दो तीन जगहों पे रेडार का यूज किया जाता है कि आपने उसे कहाँ हिट करना है, ठीक है, जैसे मिसाइल्स की बात की जाए, या रेडार की बात करें तो रेडार हमें चाहिए ताकि डिटेक्ट ना हो, बेसिकली हम दूसरी चीज को डिटेक्ट कर सके, दोनों बेसिस पे लिए। तो उस सब संदर्भ में हमारे पास एल बैंड, एस बैंड, एक्स बैंड, सी बैंड, क्यू बैंड, इन फ्यूचर वी आर गोइंग फॉर का बैंड आल्सो, उसके हायर फ्रीक्वेंसी पे भी जाए। Now this is now this little interesting two-dimensional electron gap, high electron mobility transistor। नाम में लिखा high electron mobility transistor, ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो, हाई, that is called high electron mobility as the name suggests। इसमें एक चीज बनती है two-dimensional electron gap, उस पे बाद में जाएंगे, पर ये होता क्या है बेसिकली, इट्स बेसिकली जंक्शन ऑफ वाइडर बैंड गैप, मतलब टू सेमीकंडक्टर है, एक में वाइडर बैंड गैप है, एक में नैरो बैंड गैप है, एंड जी मींस नैरो बैंड गैप, दैट इज वाइडर बैंड गैप। तो इन दैट सिनेरियो इसका एक बैंड गैप है, इसका एक बैंड गैप है, so there is a band gap difference in these two semiconductors। और इसमें this is conduction band का difference, conduction band discontinuity, this is valence band discontinuity। now question, इसमें हम अगर हमें इसको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, बैंडिंग कैसे होती है, विल कम टू दैट लेटर, पहले हम पे चलते हैं क्वेश्चन। नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स फॉर यू, ठीक है, तो जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगा। एक सवाल मैं कर दूंगा, एक आपको करना है, ठीक है, तो वाइडर बैंड गैप इज ईजी, इसका ईजी है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक से हाँ ठीक है, कॉल कर देना, कॉल कर देना। तो पहले मैं बात करता हूँ अल्गैन की। हमें अल्गैन और गैन के बीच में डेल्टा इसी निकालना है, एक दिया हुआ है 20% पे, इट इज 0.04, ये मैं कर रहा हूँ, 25 वाला आपको करना है, ठीक है, लेट्स सी कौन पहले करता है, पहले समझ लीजिए कैसे होता है। दिस इज x, दिस इज गैलियम is 1 minus x, इसको रख देगा। सबसे पहले गैलियम नाइट्राइड का बैंड गैप, Eg गैलियम नाइट्राइड is 3.4 इलेक्ट्रॉन। हमें इसका पता है नैरो बैंड गैप, यहाँ पे क्या है अल्गैन। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हमें पता है 6.2 होता है, व्हाट इज द बैंड गैप ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, 6.2 इलेक्ट्रॉन। बट हमें
Eg of algan निकालना है. This is very nice. Thank you. Now ये हमें निकालना है. तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक लॉ होता है which is called Weygard law. This is basically Eg. जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, they are very fast in this. Anyway, तो इसमें क्या होगा? This is basically X into Eg of aluminum nitride plus 1 minus X Eg of gallium nitride. This is called the Weygard law. कि अगर हमें अल्गैन का बैंड गैप निकालना है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बैंड गैप, क्योंकि उसमें है X कंपोजिशन एल्यूमिनियम की, प्लस 1 minus X gallium nitride का बैंड. So this is X into this is 6.2 plus 1 minus X into 3.4. This is Eg of algan. अब हमें डेल्टा Ec का 20% एल्यूमिनियम, X is 20%. 20% means X is 0.2. No, I write it here. X अगर 0.2 है तो कोई बताएगा? What is Eg? एल्यूमिनियम 0.2, गैलियम कितना हो जाएगा? अगर एल्यूमिनियम 0.2 है, गैलियम 1 minus X, that is 0.08. अभी देख लेते क्या आता है. तो that is 0.2 into 6.2 plus 0.8 into 3.4. ये कितना आएगा कोई बताए? Anyone? 3.3. You are using mobile. हमारे कॉलेज में तो मोबाइल यूज कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हैं. स्कूल तक होता था, बड़ा में तो यूज कर 3.96. डेल्टा Ec जो होता है जनरली मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज अबाउट 60% ऑफ डेल्टा Eg. पर ये Eg निकला है. पहले आपको डेल्टा Eg निकालना होगा. ये आपने इसका बैंड गैप निकाल लिया, दैट इज 3.96. इसका कितना था? 3.4. So what is delta Eg? Delta Eg between algan and GAN. 3.96 minus 3.4. कितना आया? 0.6. And what is delta Ec? Delta Ec से कितना आ जाएगा? 0.6 into 0.56. बताइए क्या ये वैल्यू आती है 0.3 को? अगर आ गई है तो आपने सही निकाला. बताइए. डेल्टा Ec is 60% of delta Eg. डेल्टा Eg कितना हो गया? 3.96 minus 3.4, 0.56. Now 0.6 into 0.56. 0.34 आ गया ना? 20%. मेरा काम हो गया. नाउ सबको समझ में आया? किसी है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए 25 के लिए करिए. पेन पेंसिल नहीं है, मोबाइल तो है, मोबाइल में कैलकुलेटर तो है. ट्राई करिए. जस्ट दिस फॉर्मूला. x की वैल्यू 25 करनी है. 25% मतलब 25/100, दैट इज 0.25. जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है. दिस इज द वेरी बेसिक थिंग इन अ सेमीकंडक्टर. अगर सेमीकंडक्टर में समझना चाहते हैं कोर्स है 4.1. दैट इज डेल्टा Ec
मैं है ना नाम लिख लेता हूँ। हाँ जी ताकि क्लियर रहे ना मेरे 0.42 टूट जाएगा बेटा नहीं होगा और क्या जवाब था 0.52 सर 0.52 सर 0.9 एक मिनट आपका सुप्रिया 0.9 सुप्रिया नेक्स्ट 0.09 your good name शानू और कोई जवाब देना चाहेगा कुंडू सर बोल रहे सर हैं कुंडू सर 0.44 अच्छा you are सर कुंडू सर 0.44 कुंडू सर 0.44 इसके अलावा कोई और फिगर कोई बताना चाहे सर 0.44 कुंडू सर 0.44 0.42 होता है 42 क्या नाम सर का कुंडू सर कुंडू सर ओके बस यही आंसर लेट्स सी क्या आंसर मुझे भी याद नहीं है आई होप यू कैन डू इट स्लाइड नहीं करेक्ट आंसर इज 0.42 सर एक चॉकलेट शेयर करेंगे ये दोनों देखो शेयर कर लेगा अभी और क्वेश्चन है ना बाद में सब विल शेयर एवरीथिंग नो वरी पर इस स्लाइड नहीं मूव होगा अगेन स्टक कर okay so now this is for 25% is 0.42 I hope you understand this how to find the delta EC same way delta EG निकाल सकते हैं ये अराउंड 60% होता है ये 40% होता है so if you know the delta EG you can find these things electrons two dimensional electron gas बोलते हैं जो कि electrons are confined in two dimensions and why the gas semiconductor में gas की वर्ड कैसे आ गया अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपने एटम के नहीं होते वो हर जगह जाते हैं इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं तो लाइक दे मूव अराउंड लाइक इन अ गैस रैंडम मूवमेंट तो सेम वे हियर आल्सो जो इलेक्ट्रॉन्स है कन्फाइंड हो गए इन उनकी जो क्वांटिटी है इट इज सेम एज इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स उसी रेंज में आता है दैट्स व्हाई द वर्ड इज गैस है ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें गैस वर्ड क्यों यूज किया है तो दिस इज द रीजन बिकॉज़ दे आर इनकी जो वैल्यू है कंसंट्रेशन है वो उतनी होती है जितनी मेटल्स में होती है मतलब इन सेमीकंडक्टर यू आर गेटिंग अ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू द मेटल्स मेटल इज कंडक्टर बट खाली सेमीकंडक्टर नहीं है ये क्या है दो सेमीकंडक्टर का हेटेरो जंक्शन है बिकॉज़ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन गैस तो समझ में आ रहा है इसका 2 डायमेंशन बिकॉज़ इसमें जो इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड जनरली क्या होता है 3 डायमेंशंस होता है इसका जो बैंड डायग्राम बनता है इसमें इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड हो गए मतलब इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते बिकॉज़ नाउ देयर इज अ बैंड इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाते हैं तो इसमें कन्फाइंड गो लेफ्ट हैंड साइड इस रीजन में होता क्या मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं इलेक्ट्रॉन दुनिया में हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है एवरीवन ट्राई टू बी स्टेबल हम क्या इलेक्ट्रॉन भी यही चाहते हैं होल्स भी यही चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए लो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे दिस इज हाई एनर्जी दिस इज लो एनर्जी तो जब ये दोनों मटेरियल्स को ज्वाइन किया जाता है इनका एक फर्मी लेवल होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर आपको बताओ तो फर्मी लेवल को अलाइन करना होता है फर्मी लेवल अलाइन इन सच वे होता है इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसको आसपास लोअर एनर्जी मिल गई लोअर एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी सो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाते हैं वंस दे स्टार्ट कमिंग हियर बैंड बैंडिंग हो जाएगी जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहां से जंप करेगा तो ये बैंड ऊपर की तरफ उठ जाएगा फर्मी लेवल से दूर हो जाएगा
और ये वाला बैंड फर्मी लेवल के नजदीक आ जाएगा। तो ये फर्मी लेवल से नीचे चला जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है। तो इन अ स्ट्रक्चर बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर बनाया गैन, गैन के ऊपर अलगैन, यहाँ पे 2DG बना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। तो 2 डायमेंशनल में मूव, they are not able to move in 3rd dimension, and that's why it is called 2 dimensional. ऊपर नीचे जा रहा है या फर्मी लेवल, इसका फर्मी लेवल अलग है, इसका फर्मी लेवल अलग है, दोनों का फर्मी लेवल अलाइन होता है। अलाइन क्योंकि आप हेटेरो जंक्शन बना रहे हैं, अलाइन करते वक्त इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे, सिंस इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इसका बैंड, कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल से दूर हो जाएगा, और इसमें नजदीक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए इसका कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के पास आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई एंड एक स्टेज ऐसी आ जाती है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कि फर्मी लेवल से नीचे आ जाता है। ये दिस इज अ कंडक्शन बैंड। ये बेसिक ऑफ वेरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बुक्स में या YouTube पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, एनिमेशंस के फॉर्म में भी दिए हुए कि हाउ दिस जंक्शन इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड हेटेरो जंक्शन। तो दिस इज हाउ द बैंड बाइंडिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे खाली क्या है, पॉजिटिव डोनर आयंस, इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज ये फर्मी लेवल के नीचे आ गए, यहाँ पे वो कन्फाइंड हो बिकॉज उनको उस तरह बैरियर मिलता है। नाउ दे आर गेटिंग अ बैरियर टू ट्रांसफर जो पाएंगे तो ऑलरेडी वो लोअर एनर्जी साइड पे है। तो दिस इज 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन। सर इन एल्गन एंड ओब्लिक कौन सा किसको सबस्ट्रेट एंड किसको अभी सबस्ट्रेट की बात तो अभी करेंगे। सबस्ट्रेट के ऊपर हम ये मटेरियल ग्रो करते हैं। अभी मैंने बात की है 2DG की। हाँ इसका सबस्ट्रेट क्या है, एक्चुअली क्या होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में ना डिवाइस में एक लेयर नहीं होती, 6-7 लेयर, 6-7 लेयर्स एक के ऊपर एक बनाए जाते हैं। इट्स लाइक इसमें से कौन किसको सबस्ट्रेट देंगे? हम गैन का सबस्ट्रेट कहेंगे, गैन का सबस्ट्रेट हमें मिले, पर गैन का सबस्ट्रेट होता नहीं, मतलब होता नहीं, लार्ज साइज में अवेलेबल नहीं, बहुत छोटे साइज में। तो जनरली सिलिकॉन कार्बाइड, सफायर, सिलिकॉन यूज किया जाता है। मेरी आगे की स्लाइड में शो होगी, बट उसमें मेन चीज है कि उसके ऊपर भी हमें गैन को ग्रो करना ही करना। क्यों? क्योंकि हमें हैम्ड बनाना है। हैम्ड की पहली कंडीशन क्या है, 2 डायमेंशनल है। हैम्ड का मतलब क्या, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होनी चाहिए। हाई कब होगी, जब उसके जो डोपेंट एटम है उससे वो दूर हो जाए, क्योंकि वो उसे स्कैटर कर रहे हैं। ये इसके डोपेंट एटम है, इलेक्ट्रॉन इससे स्कैटर हो, इससे इनको धक्का मारेंगे वो उनसे दूर हो जाए। वो दूर कैसे हो जाएगा, उसको दूसरी जगह भेज दो। किसी भी सेमीकंडक्टर में जब आप डोपिंग करते हो तो डोपिंग क्या करोगे, एन टाइप या पी टाइप डोपेंट एटम डालते हो। जब डोपेंट एटम डालते हो तो डोपेंट एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या बन जाता है, डोपेंट आयन, या तो डोनर आयन होगा या वो एक्सेप्टर आयन होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन है, अगर एन टाइप की बात करें, इलेक्ट्रॉन अपने डोनर आयन से स्कैटर होगा, वो जा रहा है रास्ते में, उसे दिखेगा, उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी, स्कैटरिंग आएगी, उसके कारण उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप चाहते हो उसकी मोबिलिटी हाई हो, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्यों हाई हो, हम किसी भी सेमीकंडक्टर में डिवाइस में चाहते हैं शुड हैव अ हाई करंट। करंट का कंडक्टर में सिंपल फॉर्मूला है, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, and go to the basic of semiconductor. ये बैटरी लगी है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा, एग्री? यस सर। क्यों? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, एक भी बहुत सारे ड्रिफ्ट होगी विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एग्री? सबको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to A and E into VD. A is the area of cross section, N is the number density, E is the charge of electron, VD is the drift velocity. Now, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये पोटेंशियल है V, ये है L। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी V by L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर एक टर्म होती है व्हिच इज कॉल्ड म्यू, जिसे मोबिलिटी बोलते हैं, डिफाइन किया गया व्हिच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड म्यू, क्योंकि इससे ये मटेरियल प्रॉपर्टी हो जाती है।
नाउ इसका जो रेशियो होता है दिस इज कॉल्ड द मोबिलिटी। मैं VD की जगह ये पुट करूं तो I हो जाएगा आपका A and E mu into E, लिख सकते हैं VD की जगह mu into E। तो I अगर मुझे करंट ज्यादा चाहिए तो N भी ज्यादा चाहिए और mu भी ज्यादा चाहिए। If I want high current from a device, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए and his number density, number of electron per unit volume, और मुझे मोबिलिटी भी हाई चाहिए। दोनों चीजें सेमीकंडक्टर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप किसी भी सेमीकंडक्टर में नंबर कैसे बढ़ाओगे? डोपिंग करके। डोपिंग करोगे नंबर बढ़ जाएंगे, पर साथ साथ मोबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्कैटरिंग हो जाएगी। पर मुझे दोनों हाई चाहिए, तो दोनों हाई सेमीकंडक्टर में हो नहीं पाया। फिर लोगों ने कहा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेटेरो स्ट्रक्चर, हेटेरो जंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स यूज किए गए। फाइनली दे कम अप विद दिस कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें लोअर बैंड गैप और वाइडर बैंड गैप को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, उसमें इन दैट सिनेरियो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने डोपेंट से दूर हो जाएंगे, लो एनर्जी साइड पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और इधर आने के बाद वो अपने डोपेंट से दूर हो गए। सिंस वो अपने डोपेंट से दूर हो गए तो उस रीजन में, इन दिस रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई है क्योंकि वो डोपेंट से दूर हो गए, और नंबर डेंसिटी ऑलरेडी हाई है क्योंकि वो सारे इधर आ गए। तो आपका इस रीजन में N भी हाई है और म्यू भी हाई है, तो व्हाट यू गेट? हाई करंट। करंट भी क्या आएगा? हाई है। तो सिंगल सेमीकंडक्टर में करंट एक हद तक ला सकते हो, उससे ऊपर नहीं ला सकते। उससे ऊपर लाना है, यू वांट मोर करंट, यू नीड N हाई, यू नीड म्यू हाई। मोबिलिटी भी हाई चाहिए, N भी हाई चाहिए। तो वो सिंपल सिंगल सेमीकंडक्टर में नहीं आएगा, यू नीड अ हेटेरो स्ट्रक्चर। हेटेरो स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर के ऊपर दूसरा सेमीकंडक्टर। कौन सा? डिफरेंट बैंड गैप। दिस इज हाउ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इवॉल्व, बैंड गैप इंजीनियरिंग। क्लियर? ये इसमें क्लियर है आपको? म्यू हाई होना चाहिए, एन हाई, करंट हाई। स्टिल कोई डाउट? बोलिए। आपको नहीं, उनको हाँ लग ऐसा है। Mobility of the electron is not constant. Mobility, no. VD and E. अगर आप देखो इसका जो फॉर्मूला आता है E टो बाय m आता है। अगर आप मैथमेटिकली जाओ तो इट इज E टो बाय m। E is the charge of electron, m is the effective mass and tau is the relaxation time। वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, इसलिए मोबिलिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। गैन की अलग है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की अलग है, इसकी अलग है। हर मटेरियल के लिए मोबिलिटी अलग होती है। सिलिकॉन के लिए अलग है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए अलग है, क्योंकि हर किसी मटेरियल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास कौन सा होता है? नॉट मास, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेमीकंडक्टर में? इफेक्टिव मास का मतलब होता है बेसिकली, अगर मेरे पास एक लकड़ी का तख्त है, इसको मैं हिलाना चाहूँ, नहीं हिलेगा, बहुत शक्ति लगेगी, फ्रिक्शन आएगा। पर लेट्स से पानी पे तैर रहा हो, हाँ पानी पे तैर रहा हो तो थोड़ा Upward force, है ना, अपवर्ड बुओयेंसी फोर्स लगेगी, Buoyancy है ना, जिसके कारण। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन अकेला है, वैक्यूम में, उसका एक मास है जो हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg, दैट इज द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बट जब वही इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, तो उस पे बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, अपने न्यूक्लियस, दूसरे के न्यूक्लियस, अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन, सब उस पे फोर्स लगा रहे हैं। उस पे बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, वो अकेला नहीं है, एक एम्बियंस में है, वैक्यूम में नहीं है, एम्बियंस। उन सब फोर्सेस के कारण उस पे एक नेट फोर्स आती है। उसमें उस टाइम पे उसका जो मास होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव मास, और वो उसके मास से कम हो जाता है, एंड इसलिए उसकी मूवमेंट अलग हो जाती है। लाइक दिस, इसको यहाँ पे लाना मुश्किल है, और पानी में, क्योंकि पानी में एक और फोर्स आती है, बुओयेंसी फोर्स, जिससे इसको लाने में हमारी हेल्प करती है। तो दैट इज इफेक्टिव मास। तो ये जो m है, इसलिए इसको m को m स्टार लिखा जाता है। इट्स नॉट ओनली द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेमीकंडक्टर। और ये हर मटेरियल में अलग अलग होता है, सिलिकॉन का अलग है, गैलियम आर्सेनाइड का अलग है, गैलियम नाइट्राइड का अलग है, तो उसके हिसाब से उनकी मोबिलिटी भी अलग अलग होगी, बट वो एक वैल्यू होगी। बट उससे भी अगर अच्छी वैल्यू चाहिए मुझे, तो आई हैव टू गो फॉर हैम। दैट्स व्हाई द ट्रांजिस्टर बना, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर चाहिए, खाली सेमीकंडक्टर नहीं चाहिए, आपको डिवाइसेस चाहिए। ट्रांजिस्टर क्यों चाहिए? एम्प्लीफिकेशन के लिए, ऑसिलेशंस के लिए, डिवाइसेस चाहिए आपको ना, जब पर्पस के लिए यूज करना है, स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ के लिए, वॉल कहीं पे हमें ऑन करना है, कहीं पे ऑफ करना है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, आप सबने डायोड्स पढ़ रखे होंगे, डायोड्स, ठीक है। उसमें एक होता है नॉट गेट, जहां पे ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए, ऑन
नॉट गेट पता है ना, 0 का 1 देगा, 1 का 0 देगा, Invert. इन्वर्ट करता है। तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ यूनिट ऑफ ट्रांजिस्टर। आफ्टर दिस please say after this coming to next 2D अल्गैन। अब गैन ऐसा विचित्र मटेरियल है, ये जो भी तक मैंने आपको कहानी बताई ना, वो गैन में नहीं चलती, वो गैलियम आर्सेनाइड में चलती है। पर वो बतानी जरूरी होती है क्योंकि वो समझने के लिए जरूरी है। गैन में एक चीज है एक्स्ट्रा, वो चीज तो है ही, वो तो करेंगे तो वो चलेगा, बट उसमें एक एक्स्ट्रा है कि उसमें डोपिंग करने की जरूरत नहीं, उसमें अल्गैन को भी डोपिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आपने जो पिछली वाली स्लाइड देखी थी, उसमें ऊपर वाला डोपेंट, ऊपर वाला मटेरियल में डोपिंग थी, इसमें डोपेंट आयन से, इलेक्ट्रॉन से, इसमें कोई डोपिंग, ये अनडोप था, ये डोप था, अनडोप एंड डोप, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमीनियम गैलियम आर्सेनाइड, इसमें करना पड़ता है। ये क्योंकि हम की बेसिक इसी से समझाई जाती है। बट गैलियम नाइट्राइड में हम अगर एल्यूमीनियम गैलियम नाइट्राइड को डोपिंग भी ना करें तो भी उसमें 2DG बन जाता है। ये एक विचित्र कहानी है। लोगों ने कहा जैसे हमने डोपिंग नहीं करी, हमने गैन लिया, इसमें क्या किया, गैस लिया, गैस के ऊपर अलगैस ग्रो किया और अलगैस को एन टाइप डोपिंग की, तो जाके हैम्प बना। बट गैलियम नाइट्राइड में गैन लिया, गैन के ऊपर एल्यूमीनियम गैलियम नाइट्राइड ग्रो किया, हैम्प तब भी बन गया बिना डोपिंग के। कहते हैं ये क्या कहानी है, बिना डोपिंग के हैम्प बन रहा है। तो लोगों को कुछ बात समझ गई, तो थोड़ा उसको स्टडी किया गया थ्योरेटिकली, एंड व्हाट दे फाउंड कि उसमें गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड में क्या अंतर है। कोई अगर लॉजिकली देखें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, एक है गैलियम आर्सेनाइड और एक है गैलियम नाइट्राइड। लॉजिकली देखें तो एक मटेरियल का अंतर है, कौन सा, ग्रुप 5। ग्रुप 5 क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके याद करने के, ठीक है। आई हैव रिमेंबर्ड न्यूज़पेपर आप सब लिखेंगे लेकिन ग्रुप 5 के। सो एनीवेज, सो ये आर्सेनिक की जगह नाइट्रोजन आ गया, पर नाइट्रोजन की एक ब्यूटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी है कि इनमें प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो क्या आ गया, प्लस माइनस, एरो इस तरफ होगा। प्लस माइनस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डाइपोल, एंड वो पोलराइजेशन यहाँ पे प्ले करती है इन गैलियम नाइट्राइड। इसमें एक दो तरह की पोलराइजेशन, उसमें पीएसपी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन अपने आप है, मटेरियल के कारण है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। उसमें भी होगा गैलियम आर्सेनाइड में, तो गैलियम आर्सेनाइड में पोलराइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों, गैलियम और आर्सेनाइड आसपास है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, बट गैलियम और नाइट्रोजन दूर दूर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इनमें पोलराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। वो पोलराइजेशन यहाँ पे, क्योंकि पोलराइजेशन है, प्लस माइनस दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पोलराइजेशन है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपने आप बैंड बेंडिंग हो जाएगी, तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पे 2DG बन जाता है, ऑटोमेटिकली 2DG बन जाता है। बस आपको मटेरियल सही का ही क्वालिटी का ड्रॉ करना है। सो गैन में पीएसपी आया, जब इसमें हमने एल्यूमीनियम गैलियम नाइट्राइड ड्रॉ किया तो एक स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एसपी और एक पिज़ो। पिज़ो क्यों, क्योंकि सबके हर मेटल के एक लैटिस कांस्टेंट होता है, एटम्स और एटम्स के बीच की दूरी। यहाँ एटम्स और एटम के बीच की दूरी अगर बदलेंगे उसके कारण भी पोलराइजेशन क्रिएट होगी, स्ट्रक्चर में वेरिएशन आता है और उसके कारण भी पोलराइजेशन आता है। तो इसमें दो पोलराइजेशन, इसमें एक पोलराइजेशन, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, अल्टीमेटली देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज मींस न्यूट्रलिटी स्टेटमेंट कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन मिलता है। आता कहाँ से है किसी को नहीं पता, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरी इन द लिटरेचर, आता कहाँ से किसी को नहीं पता। थ्योरीज क्या कहती है, एक ही तरीका है, जब कहीं से नहीं आता तो बाउंड्री, बाउंड्री मींस सरफेस, क्योंकि सरफेस पे हमेशा क्या होता है, डैंगलिंग हो। सरफेस के आइटम्स क्या होते हैं,
कोई भी सेफ नहीं होता ना बाउंड्री में, सरफेस पे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। देश का कोरोना इंडिया पाकिस्तान है, कोई भी इंडिया श्रीलंका जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ बाउंड्री है वहाँ के लोगों को दिक्कत रहती है, सरफेस टेंशन पड़ रखा होगा। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है। तो दिस इज हाउ द पोलराइजेशन डेवलप्स इन गैलियम नाइट्राइड एंड वहाँ पे 2dG बन जाता है बिकॉज और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। In a gallium nitride, because of the polarization, 2dG बनता है। Now 2dG mobility इसको 2dG mobility बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करती है एंड इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, मैं जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, बट यस मोबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें स्कैटरिंग कम करनी है। और बहुत तरह की स्कैटरिंग होती है। फोनोन वर्ड सबको पता है, व्हाट इज फोनोन? मैं थोड़ा सा बेसिक एंड फोटोन पता है सबको, फोटोन तो पता ही होगा। व्हाट इज फोनोन? ये वर्ड इज फोनोन। कोई बता दे। It is seen in indirectly bands of material. The word conduction band से ये फोनोन सब में है, हम में भी है। फोनोन है क्या बेसिकली? एटम्स जो वाइब्रेट करते हैं, एटम सब में, हम में, सब में, हर जगह ये जो वाइब्रेट करते हैं, इनको एक टर्म से डिफाइन किया गया है, फोनोन। पैकेट्स ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनोन। दैट इज व्हाट फोनोन, पैकेट्स ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। अब ये एटम दो एटम ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं, तो उसकी वे पे डिफाइन किया गया ऑप्टिकल या अकोस्टिक लाइक दिस। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑप्टिकल, सेम डायरेक्शन में तो अकोस्टिक लाइक दैट, बिकॉज़ ऑफ देयर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अकोस्टिक में तो साउंड, ऑप्टिकल में तो लाइट, तो क्या उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। तो वो सारे एटम, क्योंकि एटम तो हर जगह है, उन सब स्कैटरिंग को अगर आप मिनिमाइज करोगे तो आपकी मोबिलिटी बढ़ सकती है। तो इसमें मोबिलिटी बढ़ाने के लिए गैन और गैन के बीच में एल्यूमिनियम नाइट्राइड का स्पेसर, पतली सी लेयर लगाई जाती है, जिसके कारण मोबिलिटी इनहैंस हो जाती है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या देख रहा है, इधर दो एटम है, गैलियम का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, और इस तरफ देख रहा है तीन एटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मैं अज्यूम करूँ मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ 2dG में, मेरे इस तरफ दो एटम है, इस तरफ तीन एटम है, मुझे डिस्टर्बेंस होगी, ये धक्का ज्यादा देंगे, कम धक्का देंगे। मैं चाहूँगा इधर भी दो हो, उधर भी दो हो, तो उसके लिए ताकि कम स्कैटरिंग लगे तो इस बीच में एल्यूमिनियम नाइट्राइड डालिए, छोटा सा गैन और एल्गाइन के बीच में। तो उधर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का आप देखो मोबिलिटी बढ़ जाती है, 2dG भी थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ बैंड गैप। तो इधर क्या हो जाता है, इधर भी दो आइटम हो गए एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, इधर भी दो आइटम हो गए गैलियम नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इनहैंस। तो दीस आर द वेज बेसिकली जो मटेरियल लोग करते हैं चीजों को और बेहतर बनाने के लिए। आपके पास एक स्टैंडर्ड है, उसमें और बेहतर करना ना। कंपनीज भी क्या करती है, उनके पास एक प्रोडक्ट है, उसको सस्ता करना है और उसको और बेहतर करना है, ये तो चीज है। सारी R&D चल ही से मिली, क्वालिटी बढ़ाओ और कॉस्ट कम करो, तो वो सारा चीज हर जगह चलता है। क्वालिटी और बेहतर करो, मोबिलिटी और उससे ज्यादा, जो ज्ञान ज्ञान में उससे और ज्यादा बढ़ाओ। ज्ञान ज्ञान में 1700 आती है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड डाल दो 2000 मोबिलिटी आ जाए, लाइक दैट। दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव द मटेरियल स्ट्रक्चर। गैन में अब जो आप बात कर रहे थे सबस्ट्रेट की, तो ये सारी लेयर्स होती है जो गैन के मटेरियल में यूज होती है। एक सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स होती है, एंड ट्रांजिस्टर में आपको पता ही है सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं। आई होप एवरीवन नोस। इस सोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव करके ड्रेन में जाते हैं और गेट उसे कंट्रोल करता है। ये 2dG बना हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये दिखाते ऐसे हैं कि सोर्स है, बट एक्चुअल में ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या होता है, मेटल होता है, ये यहाँ तक होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते रहे इधर। यहाँ तो है इलेक्ट्रॉन, ये तो मेटल हो गया, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। और ये गेट क्या करता है, गेट का एक पोटेंशियल बैरियर होता है, वो अपने बैरियर से पोटेंशियल लगा के बीच में इसको रोक देते हैं, तो चैनल रुक गया, ऑफ कंडीशन आ गई, हट गया, ऑन कंडीशन आ गई। दिस इज हाउ ट्रांजिस्टर वर्क। ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ लाइक दैट। गेट में आप वोल्टेज लगाओगे, आप पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ तक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, रास्ता बंद। जब कम हो जाएगा रास्ता खुल जाएगा। तो दिस इज हाउ
लाइक इन अ पाइप पानी का फ्लो हो रहा है, बीच में बॉल लगा दो, खोल दो पानी चला जाएगा, बंद कर दो पानी रुक जाएगा। सेम वे इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो रहा है, अब आप उसे यूजिंग द गेट कंट्रोल। तो दिस इज द बेसिकली ट्रांजिस्टर। एंड विज्ञान में मैंने अभी बताई है आपको, वाइडर बैंड गैप सैचुरेशन वेलोसिटी सब चीजें हाई होती है। अब एपिटेक्चुअल टेक्निक्स पे आते हैं। ये तो अभी तक बस मैंने ज्ञान की कहानी बताई है। अब ग्रोथ कैसे करते हैं? ग्रोथ करने से पहले मटेरियल बताओ कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल तीन तरह का होता है। So we are now discussing the techniques for this crystallization. तीन तरह का मटेरियल है हमारे पास, पॉलीक्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल। नाउ आप सब लोगों ने किसी ने आज तक क्रिस्टल ग्रो किया है? डायमंड इज अ क्रिस्टल, ठीक है? किसी ने क्रिस्टल ग्रो किया है? एनी वन ऑफ यू? बड़ा है। मैं कहता हूँ आप सबने ग्रो की। चीनी है, पर हमने ग्रो यूज कर रहे हैं, बट हमने ग्रो किया। किसान लोग तो जो करते हैं वो तो ग्रो क्रिस्टल शुगर ग्रो भी करते हैं, हम लोग उसे यूज करते हैं। बट यस, शुगर इज अ क्रिस्टल, नमक सॉल्ट इज अ क्रिस्टल, बट हम ग्रो भी करते हैं, खुद बनाते हैं। और सर समर में तो काफी यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, उसमें ट्रे रखते हैं, पानी ओपन निकलता है आइस। आइस इज अ क्रिस्टल, वाटर का क्रिस्टल। हम सब लोग क्रिस्टल ग्रो करते हैं। नाउ क्या होता है क्रिस्टल, इसको समझते हैं। हमें लगता है हमने नहीं किया, ये चीज हम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली हमारे जीवन के आसपास ही है, बस थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स उसमें ऐड ऑन हो गई है, कुछ नया नहीं है। मटेरियल तीन तरह से डिफाइन किया जाता है। अमरफस, नो ऑर्डर स्ट्रक्चर। क्लास की छुट्टी हो जाए, सब लोग कोई इधर जा रहा है, 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 कोई कौन कहां जा रहा है पता नहीं। अमर मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई एटम इधर, कोई एटम इधर, कोई एटम इधर। दैट इज व्हाट अमर। इसमें क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लीजिए। अभी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद है विच, कुछ मटेरियल्स आएंगे, यू हैव टू टेल व्हिच वन इज अमरफस, व्हिच वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन, व्हिच वन इज सिंगल क्रिस्टलाइन। तो ध्यान से समझिए। अगेन चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अमरफस कुछ ऑर्डरिंग नहीं है, जैसे क्लास में छुट्टी होगी, बेल होगी, सब लोग जा रहे हैं, दिस इज अमरफस। सिंगल क्रिस्टलाइन असेंबली, एक के पीछे सेम डिस्टेंस, जैसे मार्चिंग होती है आर्मी से, तो एक के पीछे बिल्कुल अलाइन, दैट इज व्हाट सिंगल क्रिस्टलाइन। थैंक यू। एंड पॉलीक्रिस्टलाइन, हमारे पास एक बाउंड्री होगी, सिंगल क्रिस्टलाइन एक बाउंड्री होगी। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब जिसमें दोनों का बेस नेचर है, छोटे छोटे ग्रेन्स है जहां ऑर्डरिंग है, पूरी ऑर्डरिंग नहीं है, छोटे छोटे, कुछ कुछ जगह पे ऑर्डरिंग है, कुछ कुछ जगह पे ऑर्डरिंग नहीं है। जैसे कई जगह आपने देखा हो, कुछ लोग मिलके एक जगह सही ढंग से बैठे हैं, फिर कहीं दूसरा एक अलग ग्रुप बैठा हुआ है, एक अलग ग्रुप बैठा हुआ, अलग अलग लोग। जैसे अगर हम पूरी असेंबली को एक सेक्शन वाइज ब्रेक कर दें, इस सेक्शन के लोग ऐसे रहेंगे, इस सेक्शन के लोग ऐसे रहेंगे, इस सेक्शन के लोग ऐसे रहेंगे, तो इस सेक्शन के लोग पूरे असेंबली में हैं, बिल्कुल परफेक्ट, इधर ऐसे हैं और इधर ऐसे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, अलग अलग तरीके से हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मैक्सिमम जो मटेरियल्स होते हैं वो तो अमरफस होते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। सिंगल क्रिस्टलाइन बनाने पर, ग्रो करने पर, क्योंकि वो ऐसा ऑर्डरिंग आसानी से उपलब्ध नहीं है नेचर में, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये भी हमें बनाने पड़ते हैं, बट जनरली दिस यू हैव टू क्रिएट, ग्रो करना पड़ता है पोटेंशियल। So on the basis of this, I hope clear amorphous polycrystalline. Question is, कुछ materials हैं, बताइए। Write the name. Now, glass क्या है? What is glass? सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल। देखो तीन है, तीन में से एक तो निकलेगा, एक तो चॉकलेट मिल जाएगी। सिंगल क्रिस्टल, हाँ? सिंगल क्रिस्टल, सिंगल पॉलीक्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल, सिंगल पॉली। और कोई आंसर? हाँ, अमरफस। ग्लास है अमरफस, ग्लास अमरफस। आइस, हाउ कम आइस? आइस इज पॉली। अभी मैंने बताया क्रिस्टल है तो पॉली किसने बोला? इधर से आवाज है।
ओके डायमंड Single सिंगल हियर हो गया सिंगल ग्रो करना पड़ेगा फिर तो सिंगल क्रिस्टल लीजिए मैं एक्चुअली बहुतों ने बोला होगा मेरी जिस पे नजर की मैं उसी को दे नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक amorphous plastic is amorphous correct next is salt Single Single crystal. sorry poly sugar Poly. sugar is also poly now quartz Single crystal. quartz is single जिसको एक बार मिले ना वो ध्यान रखे दोबारा ना मिले so this is अच्छा एक इधर से क्या है sorry okay so this is glass ice diamond तो clear हो गया ये sugar and salt आसानी से बन जाते क्रिस्टल ही है आसानी से बन जाते but they don't have a complete ordered arrangement of atoms so it is single it's not a single crystal it's a poly But sir, glass is SiO2. glass हाँ देखो this is the beauty quartz is SiO2 glass is also SiO2 हाँ. दोनों ही SiO2 आप एक मटेरियल अलग अलग तरह बिहेव कर रहा है वैभव सर एक्चुअली क्या होता है इनको डिफाइन करने का सिंपल टर्म होता है अगर एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है तो क्रिस्टल में आता है अगर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है तो वो अमरकस है तो ग्लास का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं तो एक फिक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना आई होगा मेल्टिंग पॉइंट है ना Possibly 900 SiO2. हाँ तो उसका ग्लास का इज नॉट अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट उसका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इस टेंपरेचर से शुरू होता है तो इस तक चलता रहता है मेल्टिंग इसलिए ग्लास इज नॉट अ क्रिस्टलाइन while quartz का it has a single fixed melting point इस टेंपरेचर पे वो मेल्ट होगा उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है solid है मेल्ट होगा so that's why it is crystalline so this is we define in the terms of melting point amorphous है या crystalline now इसमें next is सिंगल क्रिस्टल की बात करें तो दो तरीके से ग्रो किया जाता है बल्क एंड एपिटेक्चर बल्क इसलिए हमें स्टैक बनाना है पूरा स्ट्रक्चर ग्रो करना है उसमें हमें एक सबस्ट्रेट यूज करना है स्टार्टिंग मटेरियल जिस पे जैसे पिज्जा बनाते हैं ना उसका एक बेस होता है उसी के ऊपर आप सारी चीजें लगाते हो जो भी लगाते हैं मुझे तो पता नहीं बट जो जो चीजें लगाई जाती है वो बेस के ऊपर लगाई जाती है तो बेस स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज स्टार्ट वो बनता है बल्क उसमें हम बल्क बहुत सारी टेक्निक्स हैं नॉट गोइंग टू डिटेल में जाएंगे तो एनीवेज पर इस टाइप से बनता है फिर उसमें कट किया जाता है अलग अलग एमएम की साइज में काटा जाता है एमएम मिलीमीटर सबस्ट्रेट का साइज होता है मिलीमीटर मैक्सिमम जनरली 300 माइक्रोन 0.3 मिलीमीटर डिस्मल साइज ठीक है दैट इज अ सबस्ट्रेट 300 माइक्रोन 500 माइक्रोन 500 माइक्रोन क्या हो गया 0.5 mm 1 mm से छोटा वो सबस्ट्रेट का साइज है सबस्ट्रेट का साइज कितना है 1 mm पता है ना 1 mm कितना होगा इतना ये पूरा सेंटीमीटर होगा इसमें एक छोटा सा डॉट दैट इज 1 mm 1 mm का आधा दैट इज वन सबस्ट्रेट ये पूरा आपको इतना बड़ा लिख रहा है 2 mm का होगा पूरा तो ये 3 ये 5 mm मैक्सिमम ये 5 mm का होगा इसमें से काटेंगे बहुत सारे तो इस टाइप के बनते हैं दैट इज द सबस्ट्रेट दैट इज 0.5 mm 0.3 mm उसके ऊपर एपिटेक्चुअली ग्रो किया जाता है स्ट्रक्चर कितना साइज का माइक्रोन साइज उससे भी मतलब सबस्ट्रेट उसके सामने बहुत बड़ा है 1000 गुना बड़ा है सबस्ट्रेट जो उसके ऊपर एपिटेक्चुअली जो ग्रो की जा रही है लेयर उसके सामने 1000 टाइम बड़ा है मतलब एक आपने सिंगल साइड मैंने सिंगल से लेयर रखी तो उसके नीचे मैंने 1000 लेयर रखी तो एपिटेक्चुअली इतनी कम होती है सिर्फ माइक्रोन में बट सारी गेम यहीं से होती है सारा स्ट्रक्चर उधर ही होता है माइक्रोन स्केल में होता है जनरली 2 माइक्रोन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नैनोमीटर की लेंथ की रेंज के स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोन होते हैं मतलब मैक्सिमम
मैक्सिमम 2 माइक्रोन या 3 माइक्रोन, बस 3 माइक्रोन mm के ऊपर। तो पूरा स्टैक की अगर कोई कहे थिकनेस कितनी है mm की, 1000 में 1 मिलाओ कितना हुआ 1000, 1000 एक थोड़ी बोलेंगे, मैथ्स थोड़ी है, लॉजिकली 1000 + 1 is 1001 as per maths, but as per science it is 1000, कोई ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है। तो इतना सा बस आर्किटेक्चरल ग्रोथ होता है, बट बनाना चैलेंजिंग, बहुत सारी लेयर्स बनाना, और सारा डिवाइस, सारा जब कोई ये बनाता है ट्रांजिस्टर डिवाइस, जो भी चीज़ है लेजर एलईडी वगैरह जितने भी आपने डिवाइसेस के नाम बने वो सब आर्किटेक्चरली ही ग्रो होते हैं किसी ना किसी सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट बल्ब ग्रोथ से बनता है और बाकी सारा डिवाइस आर्किटेक्चरल ग्रोथ से बनता है। इस आर्किटेक्चर वर्ड आया है ग्रीक भाषा से, ये याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से आया है, इंपॉर्टेंट थिंग, एपी एंड टैक्सेस। एपी मींस अपॉन, टैक्सेस मींस ऑर्डर, ऑर्डर अपॉन, मतलब ये आपका जो सबस्ट्रेट बना है, सिंगल क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट बना है, इसके ऊपर एज इट इज चीज ग्रो हुई, जो नीचे है वही हो रहा है। नीचे एक ईंट है, एक ही ईंट के ऊपर, जैसे दीवार है, एक ईंट उसके ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, तो इसमें कई जगह बजरपुर भी होता है, सीमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इट्स नॉट अ सिंगल क्रिस्टलाइन, बट एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट। तो सेम आपका एक सबस्ट्रेट है, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट है, जैसा अरेंजमेंट सबस्ट्रेट का है, जैसे उसमें एटम अरेंज है, उसी के ऊपर ही लेयर्स ग्रो होंगी, उसी तरीके से। दैट इज कॉल्ड एपिटैक्सी, ऑर्डर अपॉन, ठीक है। लाइक दिस, ये इसमें एटॉमिक दिखाया है, जैसे सबस्ट्रेट है उसी के ऊपर वो ग्रो होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई एपिटैक्सी। ये मैंने अभी आपको बताया, एपिटैक्सी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इम्प्रूव, एक सबस्ट्रेट है, ये मैंने अभी आपको बताया, इस सबस्ट्रेट की थिकनेस होती है इसकी थिकनेस होती है 0.3 से 0.5 मिलीमीटर, जनरली बोला जाता है 350 से 500 माइक्रोन। और ये 3 लेयर्स है, इनकी थिकनेस होती है रफली 2 से 3 माइक्रोन, माइक्रोमीटर, माइक्रोन। तो उसके सामने 500 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, बहुत कम है। बट ये सारी जो 3 लेयर्स है, 1 2 3 दिखाया, 6 या 7 लेयर भी हो सकती है, ये सब कुछ करती है, क्रिस्टलाइनिटी इंप्रूव करती है, थिकनेस आपका लैटिस मैचिंग करती है, इंजीनियरिंग करती है, सुपर लैटिस, टेन लेयर, नैनो स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं, ये सब इसी जरिए होता है आर्किटेक्चर में। नाउ इसमें 2 तरह की आर्किटेक्चर होती है, होमो एंड हेटेरो। ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज होमो एंड हेटेरो। होमो मींस सेम टू सेम, मैंने अभी बताया जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वैसा ही होना चाहिए, बात सही है। अगर मटेरियल भी सेम है तो कहा जाएगा होमो, सिलिकॉन पे सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड पे गैलियम आर्सेनाइड, दैट इज कॉल्ड होमो आर्किटेक्चर। बट कई जगह हमें हेटेरो, कई जगह के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमें हेटेरो आर्किटेक्चर करनी पड़ती है, जिसमें स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है बट मटेरियल अलग होता है। लाइक एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड ऑन गैलियम आर्सेनाइड, स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है, दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब या तो जिंक प्लेट, या तो डायमंड, या तो वर्डाइट, या तो एफसीसी, मतलब अगर इसका एफसीसी है तो इसका भी एफसीसी, बट मटेरियल अलग है। अगर मटेरियल अलग है तो हेटेरो, लाइक गैलियम नाइट्राइड ऑन सिलिकॉन कार्बाइड, इसका भी वर्डाइट है, इसका भी वर्डाइट, दोनों मटेरियल अलग अलग है, दिस इज नॉट अ होमो, इट इज हेटेरो आर्किटेक्चर। तो GaN on a silicon carbide is a hetero architecture. GaN on a silicon is, GaN on silicon, लास्ट में आप बताइए, अब लास्ट में अजय, GaN on silicon। सर आप जो कह रहे हैं वही सही है। ये जवाब तो बहुत अच्छा है। आपको, आप देखो फैकल्टीज हैं, आपको स्टूडेंट ऐसे ही कई बार जवाब देते होंगे, आई एम नॉट अ फैकल्टी, बट द थिंग इज दैट GaN on a silicon, दोनों अलग अलग मटेरियल, दोनों का बैंड गैप अलग है, दोनों का बैंड, अगर बैंड गैप भी सेम हो, कोई ऐसे मटेरियल आपको मिल जाए बैंड, बट अगर मटेरियल अलग है तो हेटेरो, सेम है तो होमो, सिंपल भाषा। तो होमो और हेटेरो में डिफरेंस यू शुड नो। देखो आपका बेसिकली सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, मेरा कोशिश बस इतना सही, ठीक है। बाकी तो आप अपना जितना पढ़ेंगे, डेवलप करेंगे, वो चीज आपको आएगी। और प्लस दूसरा तो ये कि मैं भी आप लोगों से काफी सीख रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देना और क्लासरूम में लेक्चर देना थोड़ा अलग होता है।
Conference में तो just we have to tell us about our work. But यहाँ पे पढ़ाना अच्छा लगता है. Good. Now coming to this, ये वही है कैसे कैसे एटम्स आ रहे हैं. एटम्स आ रहे हैं, एटम्स पे देखो ग्रो हो रहे हैं like this. PDF है but this is how the atoms arrange हो रहे हैं. के ऊपर यहाँ पे starting था एटम्स उसी के ऊपर एक जैसे स्ट्रक्चर का रखते हैं तो सिंगल लाइन ग्रो. बिल्कुल जो नीचे है वही ऊपर. सेम वे से मटेरियल ऊपर ग्रो हो रहा है. स्ट्रक्चर वही जा रहा है. दैट इज व्हाट एपिटाइज. नाउ अब इसमें क्या होता है? लैटिस मैचिंग स्ट्रेन अनस्ट्रेन. लैटिस मैचिंग तो बहुत सिंपल है. जब दोनों का साइज सेम है, एटम एटम के बीच में दूरी सेम है तो लैटिस मैचिंग है. वो सेम है. कई बार क्या होता है जो ऊपर वाली लेयर है एटम एटम के बीच की दूरी ज्यादा भी हो सकती है नीचे से या कम भी हो सकती है. जैसे इस केस में इधर एटम एटम के बीच में दूरी इतनी है और इधर ज्यादा है तो ज्यादा वाली चीज जब छोटी वाली के ऊपर आएगी तो उस पे क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा. उसको क्या होना होगा? कंप्रेस होना होगा. अगर कम होता तो क्या होता? टेंसाइल. तो दोनों संभावनाएं हैं. ऊपर वाले मटेरियल्स में एटम्स और एटम्स के बीच में सेपरेशन कम है या ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली उस पे स्ट्रेन आता है. टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन. ये होमो में पॉसिबल है. होमो में होमो में सेम मटेरियल है तो वहां तो लैटिस मैचिंग ये हेटेरोजेनियस. और इसी का ही फायदा होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेन डालते हैं तो स्ट्रेन के कारण भी पोलराइजेशन आता है. भी मैंने आपको बताया. गैन के ऊपर जब हम अल्गैन ग्रो करते हैं दोनों का लैटिस कांस्टेंट अलग अलग होता है तो स्ट्रेन आता है. और स्ट्रेन हमें हेल्प करता है पोलराइजेशन में जिससे हमारा 2D की बनता है. सो ये सारी चीजें जितनी भी करते हैं उससे क्या होता है? मटेरियल की और डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव होती है. नई नई चीजें बनती हैं. सर पूरा राइट हैंड साइड में जो है तो राइट हैंड साइड ऑल इट इज अनस्ट्रेन सर. राइट हैंड साइड में क्या अनस्ट्रेन. ऊपर वाला पहले जब शुरू में था स्ट्रेन था. अब क्या होता है जब हर इंसान की लिमिट होती है ना ऐसे आइटम्स की लिमिट होती है. कब तक वो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ. एक दिन तो मैं भी गुस्सा करूंगा ना, है ना. तो वैसे ही मटेरियल के साथ भी है. बेचारा स्ट्रेन में आ गया, स्ट्रेन में आ गया ठीक है और आगे और आइटम्स आ रहे हैं वो भी स्ट्रेन में आ गए. फिर एक जगह आने पे क्रिटिकल थिकनेस आने पे वो कहता है मैं अपना स्ट्रेन रिलैक्स करना चाहता हूँ. तो स्ट्रेन रिलैक्स करने के लिए क्या करता है? बीच में डिसलोकेशंस क्रिएट करता है. उसका मिसफिट डिसलोकेशन. इस टाइप से बैंडिंग वो अपना वापस ये अपना स्ट्रेन अभी देखो इस स्टेज पे वो बड़ा था आगे वो बड़ा ही है. इधर ऐसे ऐसे चले गए. पहले उसने ऐसे ही ग्रो किया स्ट्रेन. फिर एक स्टेज आने पे वो क्या हो गया? अनस्ट्रेन हो गया. बीच में कुछ एटम्स उसने बॉन्डिंग करना छोड़ दी. दिस इज कॉल्ड मिसफिट डिसलोकेशंस क्रिएट हो जाते हैं. वो रिलैक्स हो जाता है. फिर वो लेयर क्या कहलाई जाती है? अनस्ट्रेन. अनस्ट्रेन मतलब रिलैक्स लेयर. सिलिकॉन कार्बाइड सर ये ऊपर का जो है ऊपर का जो लैटिस कांस्टेंट है वो डिफरेंट है नीचे का. ऊपर वाला पिक्चर तो राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इधर हां उधर ये वाला से हां इसकी बात कर रहे हैं. ऊपर का जो लैटिस कांस्टेंट है वो ज्यादा है नीचे हाँ. का सबसे. जो इतना है वही इतना हो गया. जब वो स्ट्रेन में था अभी देखो इसका ज्यादा है इसका कम है. हाँ. पर जब ग्रो होना शुरू हुआ इसका और इसका मैच कर गया मैच कर गया है ना. हाँ. तो अभी कहेंगे इसका और इसका सेम है. इस पे स्ट्रेन है, इस पे एक और लेयर आया स्ट्रेन आया. फिर एक स्टेज आने पे वो कहता है मेरे से और स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गया. तो वो क्या करता है? रिलैक्स हो जाता है. रिलैक्स होता है कहता है बीच में वो एक एटम के साथ बॉन्ड तोड़ देता है. बॉन्ड टूट गया, यहाँ टूट गया. अब वो अपने उसी एटॉमिक स्पेसिंग में आ गया जिसमें वो था. दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रेन. तो कुछ थिकनेस के बाद जो चीज स्ट्रेन है वो क्या हो जाती है? अनस्ट्रेन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है. थिन फिल्म और थिक फिल्म वही चीज मैंने दोबारा से वही सेम चीज है अलग पिक्चर में. जब थिन फिल्म थी तो सूडोमॉर्फिक वर्ड यूज किया जाता है. सूडोमॉर्फिक मतलब इसका लैटिस कांस्टेंट इसका मैच कर गया. पर जैसे ये थिक हुआ बीच में डिसलोकेशन आ गया. रिलैक्स लेयर मिसफिट डिसलोकेशन. डिसलोकेशन मतलब यही है कुछ एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना. नाउ दिस इज अब ग्रोथ होती कैसे है? लेयर बाय लेयर स्ट्रेंथनिंग गोल्मर वेबर. अब लेट्स सपोज एक रूम है खाली सा है बिल्कुल खाली सा रूम खाली है ठीक है. उसमें एग्जाम होना है. सबका रोल नंबर डिफाइंड है. आपको इधर जगह बैठे तो जो पहला पर्सन आया वो अपनी जगह बैठा. पहला रोल नंबर. दूसरा उसके बगल में बैठा, तीसरा उसके बगल में बैठा, चौथा उसके बगल में. लाइक दिस लेयर बाय लेयर
लेयर, फिर दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, दिस इज कॉल्ड लेयर करेंगे, पहली लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, रोल नंबर। बट बाई चांस ऐसा लो आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वन चीज क्यों फ्रेंड्स कोलीग्स हैं जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, वॉर्मर वेबर। तो कहीं जगह वॉर्मर वेबर बनता है, कहीं जगह लेयर लेयर बनता है, डिपेंड कि इसके एटम और इसके एटम के बीच की बॉन्डिंग और इन दोनों एटम के बीच की बॉन्डिंग कैसी है। अगर एटम की बॉन्डिंग ज्यादा है तो वो लेयर बाय लेयर आएगी, सॉरी एटम और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो लेयर बाय लेयर आएगी, और अगर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा है तो क्या आएगी, आइलैंड। तो डिपेंड्स इनके बीच की एनर्जीज क्या है, इंटरफेशियल एनर्जीज क्या है, वो डिफाइन करती है कि आपका ग्रोथ कैसी होगी, लेयर बाय लेयर होगी या आइलैंड फॉर्म में होगी, वॉर्मर वेबर होगी। अब गैस और सिलिकॉन कार्बाइड पर जब हम ग्रो करते हैं डायरेक्टली ग्रो करो, कुछ ना डाला बीच में, तो वो क्या होता है, वॉर्मर वेबर, मतलब आइलैंड्स बनते हैं, अलग अलग जगह पे आइलैंड दिखेंगे, ग्रोइंग होगा, सिंगल क्रिस्टलाइन ग्रोइंग होगा, लेयर हमें ये चाहिए लेयर बाय लेयर या स्टेप लेयर्स चाहिए, सिंगल क्रिस्टलाइन अगर ये बन रहा है तो वो हमारे लिए उस पर्पस के लिए, जिस हेम्प के पर्पस के लिए नहीं, वो किसी और पर्पस में यूज। तो अगर गैस को डायरेक्टली करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड में तो वो वॉर्मर वेबर ग्रोथ मोड होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक है, आई डोंट वांट टू कवर दिस, मेन टॉपिक तो शुरू नहीं होगा। एमओवीपी मेटल ऑर्गेनिक, जिसमें मैं काम करता हूँ, अब मैं उस पे आया हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक तो सब कहानी की बेसिक थी, पिक्चर अभी बाकी है, मेरा ट्रेलर था। तो दिस इज मेटल ऑर्गेनिक पेपर फेस एपिटेक्चुअल टेक्निक, MOCVD, इसके बहुत सारे नाम हैं। नाउ इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट एक एपिटेक्चुअल टेक्निक है, सिंगल क्रिस्टलाइन ग्रो करना है, मटेरियल यूज किया जाता है मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी को पता है केमिस्ट्री का कोई, मेटल ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है, तो मेटल ऑर्गेनिक जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, उसे बोलेंगे मेटल ऑर्गेनिक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं ट्राइमिथाइल CH3, सबको पता है मिथाइल होता है नो CH3, तो ट्राइमिथाइल गैलियम, ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम, ट्राइमिथाइल इंडियम यूज होता है। इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैरियर गैस, जिसके जरिए ये सोर्सेस होते हैं। कैरियर गैस जैसे आप घर से यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, पैदल, बस, कार, मेट्रो, बहुत सारे साधन, तो ये कैरियर है जिसके जरिए एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इन MOCVD कैरियर गैस प्लेस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके जरिए हम चीजों को, तो कैरियर गैस इनर्ट होनी चाहिए, तो इसमें जनरली हम यूज करते हैं हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट। इसमें एक चीज है प्योरिटी। नाउ अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्योरिटी 6 and 7 है, किसी को पता व्हाट इज मीन बाय 6 and? किसी को नहीं पता तो क्वेश्चन करते हैं क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। 6 and मैं समझा देता हूँ, बाकी चीजें याद करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर द क्वेश्चन एवरीवन, फोकस, ध्यान देंगे। नाउ 6 and का मतलब क्या होता है, किसी भी आप कोई भी मटेरियल यूज करते हो, कोई भी सोर्सेज यूज करते हो, गैसेज हो, लिक्विड हो, उसकी प्योरिटी होती है। हाँ ब्रदर, लास्ट में चश्मे वाले भाई साहब, आप दोनों, इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है? चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कि आप, मुझे पता आप लोग जवाब दे सकते हो, बहुत बढ़िया। 6 and क्या होता है, पहले समझते हैं 6 and क्या होता है। 6 and का मतलब है 99.9999 इतना परसेंट प्योर। हम मैथ्स की भाषा में से कहेंगे 100%, पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये 100% नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी 100% प्योर कोई चीज नहीं है, आइडियल कुछ नहीं होता, ठीक है? गॉड को बोल दो, बाकी दुनिया में हर कोई रियल है, नथिंग इज आइडियल, ठीक है? सो सेम वे गैसेस, सोर्सेज, मटेरियल के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। तो 6 and मतलब 99.99। 7 and क्या होगा, क्या होगा 7 and 99 रहेगा, 999 नहीं बनेगा। 7 and क्या हो जाएगा 99.99999। कौन सा ज्यादा प्योर है, 6 and या 7 and?
7 जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा प्योर होगा। 7 मींस और आगे डेसिमल तक जब जा रहे हैं ना। अब 6 and 1 ppm होता है, कैसे आया समझते हैं। अगर 1 ppm आई होप सबको पता होगा, दोनों एक ही बात हो गई सर। पार्ट्स पर मिलियन। 6 का मतलब होता है अगर आपके पास 10 की पावर 6 एटम्स है, उसमें एक एटम इम्प्योर। 10 लाख में 10 की पावर 6 इज 10 lakhs, 1 बिलियन। 10 लाख में एक एटम अगर इम्प्योर है, उसको हम बोलते हैं वो 6 एम्प्योर। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से 1 रुपया खराब निकल गया, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होता। 10 लाख में 1 रुपया खराब हो गया। बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फर्क पड़ता है। 6 एन है, 7 एन है, 5 एन है, 4 एन है, तो सब में फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले निकालते हैं कैसे आया। निकालने का तरीका